Okay, very good morning to all of you and welcome back. So here we are on air and let's continue our discussion. We were almost winding up the discussion on vectors. I mean, so एक दो चीजें मैं बता देता हूँ so that we can put a break on the topic and then continue with our next discussion, which is on motion in one dimension. So that would be the main agenda of today's discussion. Fine. तो मैंने कुछ वेक्टर रिलेटेड बताया था तो कुछ रूल्स में बता देता हूँ. Rule number 1 is regarding the fact that let's say if I have to find out A cross B plus C, so I can split it up. Split it up means I can find out A cross B first and then add to that A cross C. So I can open the bracket and that's what I can do. Okay. Not only that, we know that A cross B, has an interpretation that is area of parallelogram, isn't it? So like this, let's say A vector is B vector. We know that the magnitude of A cross B is equal to area of parallelogram, isn't it? So area of, that is something that we know. Now, that's not the only thing. Okay. Sometimes the diagonals of a parallelogram is given. Okay. So let's say this is a parallelogram and these are the diagonal vectors. Fine. So then also we can find out the area, and that area will be half of, so let's say this is diagonal vector D1 and this is diagonal vector D2, then we can find it out by D1 cross D2. So these are some of the things that you ought to know. I mean, okay. Lastly, let's say there's a triangle. It's a 3D triangle in the sense it can be oriented in any way, not that it is in a particular plane of X, Y, or Y, Z, or Z. It's not really necessary. It could be in any orientation. Okay. In such a case, let's say the position vectors are, let's say A vector. Okay. This is suppose B vector. And let's say this is C vector. So what are A, B, and C? A, B, and C are basically the position vectors. So mind you, A, B, and C are the position vectors. So A, B, and C are the position vectors of the vertices. Okay, of the triangle. So A, B, and C are the position vectors of the vertices of the triangle. And if that is the case, then we have the area of the triangle. See, we have the area of the triangle here also. So let's say if I complete this triangle and two of the sides are, let's say A and B, we can find it out by just putting a half on it. That is, if the sides are vectors. So here the sides are the vectors. Here sides are the vectors themselves. Here the thing is different. Here it is the vertices which are the vectors. Okay, so these are the position vectors. That's how written. Then the area of the triangle can be found as half of A cross B plus B cross C plus C cross A. Okay, so that is the, we put a mod because otherwise sometimes the answer to that question will become positive and sometimes will be negative. Okay, so half of A cross B, fine, plus B cross C plus C cross A, and then a mod on that. Okay, so that's how we can also find out. So actually it is based on this only, but then extended beyond that, and we can use all these things also to find out sometimes. Sir, I joined now only. So अभी तक क्या कराया आपने?
ज्यादा कुछ नहीं करा, बस दो तीन चीजें बताया अभी। तो एक तो ये प्रॉपर्टी बताया वेक्टर का कि अगर ए क्रॉस ब्रैकेट में बी प्लस सी होता तो मैं ब्रैकेट खोल सकता हूँ। अगर पैरेललोग्राम के दो डायगोनल वेक्टर्स दिया हुआ है तो उसके एरिया निकाल सकता हूँ पैरेललोग्राम के, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फिर मैंने बताया कि अगर तीन पोजीशन वेक्टर्स दिया हुआ है ट्रायंगल की, सो दिस आर द पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। तो ऐसे केस में तीनों पोजीशन वेक्टर्स अगर दिया हुआ है एबीसी वेक्टर्स, तो इन दैट केस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैन बी फाउंड आउट बाय दिस। नाउ यू माइट से एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो हमने पिछले क्लास में भी बताया था आपने कि हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। देखो उसमें जो ए और बी था वो साइड्स थे, यहाँ पे ए और बी सी एबीसी साइड्स नहीं, इस बार एबीसी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द साइड्स। यानी अगर तुम बोलोगे साइड्स क्या है, फिर तो साइड हो जाएगा इस केस में यू नो माइनस, जैसे ये वाला साइड अगर देखते हो, ठीक है ना, ये वाला साइड अगर ऐसे देखते हो तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। ये वाला साइड जो होगा वो होगा बी माइनस ए, ठीक है ना, ये वाला साइड हो जाएगा। एंड सिमिलरली बाकी साइड्स भी निकाल सकते। तो डिफरेंस है यहाँ पे, ए और बी साइड्स है तो ये फॉर्मूला हाफ ऑफ, ये तो पैरेललोग्राम का हो गया, और ट्रायंगल का चाहिए तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इसमें ए और बी साइड्स थे और इसमें पोजीशन वेक्टर्स, तो वो थोड़ा सा अंतर, ठीक है। बस ये दो तीन चीजें मैंने बताया था, लाइक दिस आर जस्ट थिंग्स दैट यू कैन प्रॉब्ली नोट डाउन एंड यूज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है ना। चलो लेट्स प्रोसीड फ्रॉम हियर। मैं एक काम करूंगा, मैं कोशिश करता हूँ कि एक जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट एक वर्कशीट दिया था, तो ऐसे एक क्रॉस प्रोडक्ट का भी दे दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर ये ए और बी वेक्टर होता है सर, ठीक है ना, अगर ये ए और बी वेक्टर होगा तो ए क्रॉस बी क्या होगा, परपेंडिकुलर, सो लाइक दिस इज ए क्रॉस बी। और अगर मान लो मैं एक सी वेक्टर भी लेता हूं, सपोज ऐसे करके सी वेक्टर, और उससे एक वो कंप्लीट करता हूं, व्हाट इज कॉल्ड एज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू द हाइट। अब हाइट के लिए क्या होगा ना, इससे परपेंडिकुलर यानी सी cos थीटा। So therefore volume of parallelepiped is given by C dot A cross B, उसका मॉड, ठीक है ना, that's how it is formed। देख लो सर पीछे वाला फॉर्मूला लिखना एक बार, कौन सा वाला फॉर्मूला, पोजीशन वेक्टर वाला, सी A क्रॉस ए cross B plus B cross C plus C cross A का मॉड और हाफ बार बाहर। सर ये फिगर बेसिकली पैरेललोग्राम का 3D वर्जन है ना। एक्चुअली देखो क्या है ना, इसको क्यूबॉइड मत समझ लेना, मतलब थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझ लो, ऐसे टाइप का फिगर। हाँ I वही, know it's a little difficult इसका to draw, बेस but पैरेललोग्राम है। हाँ हाँ वही बेस पैरेललोग्राम है, और जो साइड्स है ना वो थोड़ा इंक्लाइन है, तो दैट इज हाउ यू हैव टू विजुअलाइज दिस, साढ़े पे आता था। समथिंग लाइक दिस, दैट्स हाउ यू कैन अप्रोक्सीमेटली विजुअलाइज। यानी चारों तरफ से बेंड है, सारे एंगल्स है, मतलब है ना। तो ऐसे केस में वॉल्यूम ही आ जाता है, बट देन दिस इज नॉट द ओनली वन, वी कैन हैव साइकिल नाउ। तो ये सी डॉट ए क्रॉस बी है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एज, सर आपके पास कट कट के आ रही है। okay, Ishita has asked ki what is the shape, I mean the shape has a name and that is called as parallelepiped. Means the base is a parallelogram and all the sides or the surfaces are also parallelograms, ठीक है ना। so that's why it is called as a parallelepiped। इसका जो जनरल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम है वो है, कोई भी बेस ले लो, यानी उसको ऐसे रख लो, फिर ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, जैसे मर्जी रख लो, दैट इज द बेस, और इनटू द ऑल्टीट्यूड। तो उसको वर्कआउट करो तो ये भी बनता है, ये भी बनता है, और एक बनेगा बी डॉट ए क्रॉस, ठीक है ना। वैसे तो जनरली अगर सीक्वेंस में लिखो तो इसको सी क्रॉस ए लिखो तो ज्यादा अच्छा है, और एक बात हम तो मॉड लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एबीसी के सीक्वेंस में लगा तो ए बी सी बी सी ए सी ए बी,
वैसे जरूरी नहीं है, तुम अगर इसको बोलोगे ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए, फिर मॉड तो लग ही रहा है, तो इसलिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट इट इज, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। पैरेललोपिपेड का फुल फॉर्म है, इससे पिछले वाले की डेरिवेशन करा देना। हाँ? इससे पिछले वाले की डेरिवेशन करवा दो। ये डेरिवेशन तो कुछ नहीं, तुम साइड्स निकाल लो, इससे पिछले वाले की वो हाफ वाला ना। पोजीशन वेक्टर वाला वो अलग है। तो पोजीशन वेक्टर में देखो क्या है ना, कि ये जो ट्राइंगल है, जैसे ये पोजीशन वेक्टर्स हो गए, है ना, तो कोई सा भी दो साइड ले लो, है ना, और हमें पता है कि अगर ये ऐसे साइड्स लेते हो तो ये तीनों साइड का समेशन क्या होगा, 0 होगा। यूज दिस टू प्रॉपर्टीज, देखना डेरिवेशन में, ठीक है ना। एक बार ट्राई करो, देखो तो मैं तो करूंगा ही, ठीक है ना। अच्छा, ये जो वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपिपेड है, इसको भी लिखने का एक तरीका है, कैसे, सपोज इसी को देख रहा हूं, सर नोट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैंने अभी कुछ मिटाया नहीं, जस्ट वो कर रहा हूं। अगर इसी को देखते हो तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, मैं इसके लिए डायरेक्ट डिटर्मिनेंट, कैसे, सी डॉट ए क्रॉस बी ना, सी के लिए सी एक्स सी वाई सी जेड वेक्टर, फिर ए क्रॉस बी यानी ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई एंड बी, ये इसका डायरेक्ट है, सर ठीक है। सर हम पैरेललोपिपेड को एक टिल्टेड क्यूबॉइड बोल सकते हैं। यस यू कैन से, नो हाँ, ठीक है ना, मतलब एक क्यूबॉइड ले लो और उसको थोड़ा टिल्ट कर दो इधर भी और उधर भी, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड जो जैसे वेक्टर्स दिया जाएगा, तो यू आर गोइंग टू गेट ए पैरेलल। इसको उल्टा भी कह सकते हो कि पैरेललोपिपेड के एंगल्स को धीरे धीरे 90 डिग्री करके हमें क्यूबॉइड, दैट्स अ वे ऑफ इंटरप्रेटिंग, ठीक है। सर वो पैरेललोपिपेड में जो सी वेक्टर था वो परपेंडिकुलर हाइट थी ना कि वो कोई एज। ना 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 ना, सी वेक्टर इज नॉट द परपेंडिकुलर हाइट, सी वेक्टर तो टेढ़ा ही था। ये देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये तो सारे टेढ़े मेढ़े ही है, मतलब एंगल पे है बेसिकली। ये देखो ऐसे, ये देखो, मैंने बोला था कि लाइक ए बी, तो ए जैसे अगर ये ए वेक्टर है और अगर ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ये हो गया बेस एरिया। लेकिन ये तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया बेस एरिया, बट ए क्रॉस बी एक्चुअली क्या है, ए क्रॉस बी तो एक्चुअली परपेंडिकुलर है, ऐसे करके। तो मैं क्या करूंगा, अगर वॉल्यूम चाहिए तो क्या करूंगा, बेस एरिया तो चलिए हो गया, इनको हाइट, हाइट बोलते क्या है, ये सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये हो गया ए क्रॉस बी। तो सी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट से मैंने क्या किया, इसका हाइट निकाला, सो दिस बिकम्स बेसिकली द हाइट, दिस इज द हाइट। उसके लिए फिर मैंने सी डॉट कर दिया ए क्रॉस बी, फिर मैग्नीट्यूड हटा देता हूं और फिर अब कर लो, तो ये बेस एरिया और ये डॉट प्रोडक्ट से ऑल्टीट्यूड यानी हाइट में मल्टीप्लाई हो, है ना। Therefore, finally, this will become the volume. यानी बेस ओके एरिया सर। इनटू द ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड के लिए वो डॉट प्रोडक्ट वाला चीज, ठीक है ना, सी डॉट ए क्रॉस, देख लो अच्छे से भाई। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर ट्रिपल प्रॉब्लम। अगर मान लो कोप्लेनारिटी चाहिए, कोप्लेनार वेक्टर्स होता है और 3 वेक्टर्स दिया हुआ है ना, 3 वेक्टर्स आर गिवन, a vector, b vector and c vector, so that case obviously फिर क्या होना चाहिए ना, this should be equal to 0। क्यों, ये अगर एक ही प्लेन पे तीनों वेक्टर्स है, यानी वॉल्यूम तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो a और b में तो एक एरिया बनेगा। अगर c वेक्टर थोड़ा सा उस एरिया से कहीं प्रोजेक्शन है, तो इन दैट केस तो वॉल्यूम बनेगा। अगर c वेक्टर भी उसी प्लेन पे आ जाए फिर तो वॉल्यूम बनेगा नहीं। यानी कोप्लेनारिटी का क्राइटेरिया क्या हो गया, द ट्रिपल प्रोडक्ट वैल्यू, यानी ये डिटरमिनेंट का वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। That's how it is, ठीक है। ये डिटरमिनेंट को अगर 0 कर दिया, इससे पता चल जाएगा कि 3 वेक्टर्स कोप्लेनार है या नहीं, ठीक है। कोप्लेनार वेक्टर्स 3 वेक्टर्स, ये कंडीशन है, ठीक है, दैट्स द कंडीशन। चलो, so that was about your vectors। I will try for an assignment maybe today on जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट का दिया था वैसे एक क्रॉस प्रोडक्ट का भी दे देंगे, है ना, so that you can practice more on that, fine।
तो ये Let's- डिटरमिनेंट में क्यों डाला हुआ है आपने CX को? CX की वैसी है वो तो डॉट में है ना, कौन सा? C वेक्टर डॉट A क्रॉस B है ना, तो C को डिटरमिनेंट में क्यों डाला हुआ है? नहीं नहीं, अगर तुम A क्रॉस B निकालो तो यहाँ पे I J K होता है। अच्छा हाँ, अब तुम C डॉट कर रहे हो तो यहाँ पे CX CY CZ करो तो देखना वैल्यू वही है। इसका एक्सपेंशन करके और इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट करके देखो वही आए, लाइक इट कम्स आउट टू बी लाइक दैट। वो फॉर्मेट देख के ऑब्वियसली वो डिजाइन किया, नॉट द अदर वे अराउंड, ठीक है ना। इसका अगर तुम पूरा एक्सपेंशन बनाओगे ना, A क्रॉस B का बना लो, AX BX CX वाला वो सब चीजें, और सॉरी AX AY Z BX BY BZ और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट, तो जो समझ एक्सपेंशन बनेगा देखना बिल्कुल इसके साथ फॉर्मेट में मैच, वो तो ऑब्जर्वेशन से आया ऑब्वियसली। Now we put an end or put a break to this discussion on vectors. We move on to now motion in one dimension. आज हम लोग का जो डिस्कशन स्टार्ट होगा दैट इज मोशन इन one dimension. But mind you, today's discussion, we are going to fix our focus only on motion in 1D. That means not in 2D, any curves वगैरह, ठीक है? Now the different terms that we are supposed to handle are obviously time. उसके लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे T, फिर है पोजीशन, तो पोजीशन इन 1D है तो पोजीशन में एक कोऑर्डिनेट काफी होता है, ठीक है ना, तो लाइक वी कैन पुट इट एज x. देन वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, जिसका सिंबल हम लोग यूज करेंगे s. फिर है डिस्टेंस. अच्छा, डिस्टेंस के लिए ना बुक में कोई कुछ खास सिंबल कुछ नहीं है सच, तो हम अपना ही सिंबल यूज कर रहे हैं, लेट्स से l. इट मेक सेंस, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ पाथ होता है, तो आई थिंक लेट्स पुट l हमें. फिर आ जाओ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का तो चलो v है ना. स्पीड, अब स्पीड का भी ना कुछ स्पेशल सिंबल बुक्स में है नहीं, तो इसलिए मैं स्पीड के लिए क्या करूंगा, l डॉट. जस्ट टू ब्रिंग इट इनटू कॉन्टेक्स्ट, हमें याद रखना कि अगर कोई फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो द शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग इट इज f डैश. f डैश का मतलब होता है df dx. पर अगर उसी फंक्शन को मैं अगर टाइम के रिस्पेक्ट में करता हूं df dt, तो वी जनरली राइट इट एज f डॉट. ये एक नोटेशन है, कन्वेंशन है. तो क्योंकि स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो यानी dl dt, इसलिए मैंने l डॉट लिखा, बट एक्चुअली क्या है dl अपॉन dt, ठीक है. वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन, उसका तो चलो स्टैंडर्ड सिंबल है a. एक और आता है दैट इज कॉल्ड एज जर्क, इसका सिंबल हम रखेंगे एज a डॉट. जर्क का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना. सो दैट्स व्हाट इज जर्क. तो लाइक जर्क के लिए हम लिख देंगे a डॉट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन. दिस इज द सिंबल्स. Now let's start the discussion in the context of, mind you, 1D. If I ask you, what is exactly displacement? तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो डेफिनेशन है और एक इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. तो let's take up one at a time maybe. Yes, Jasleen, can you define what is displacement? Yes, sir. Both in words as well as mathematically. Please go ahead quickly. Sir, it is the shortest distance between 2 points. Okay, now when you say 2 points, that leaves those 2 points undefined. So like a definition of, Initial and the final point position of the like, now it is more clear. part. So whenever you talk about any definition, it should be very clear. Now it is okay. So it is the shortest distance between the initial to the final point. And how do we really define displacement mathematically? Okay, Dhruv, you are right. But in the meanwhile, Jasleen also has a chance. Okay, so displacement is defined as final position, Change in position vector. change in position. That's right. That is x2 minus x1. Now, what is x really? Position. Now, how do I define position? Position is with respect to what is called as reference frame. Now, what do you mean by reference frame? Reference frame is basically a set of x, y, and z coordinate system. That's what a general statement is. But because we are discussing only 1D, so maybe what I can do is that probably I can align one of the axes, either the x or y or z, along the motion path. That would make it convenient. Otherwise, we might have to even handle 3 coordinates as well, which we would try to avoid, isn't it? So that's what with respect to reference frame. Okay, distance, as you know, is length of path. So displacement and distance, how are they related?
Distance and displacement, how are they related? Aadhar, can you give me the answer? Aadhar Verma. Let's be real quick. I mean, Aadhar Verma, relationship between distance and displacement. Okay, that's right. Distance is either greater than or equal to displacement. And can you tell me when is that equal to and when is this greater than? Yes, Aadhar. ये greater than कब होगा और less than कब होगा? मतलब equal to कब होगा? Yes. Okay. Akshat has given the first correct answer. There are more answers coming out, of course, and that is अगर direction नहीं change होता है, so like no change in direction, तो क्या हो जाएगा? Distance is equal to displacement, है ना? और अगर direction change हो रहा है, but mind you, we are only talking about 1D motion. अगर curve होता तो anyway direction तो change हो ही रहा है, but मैं curve की बात नहीं कर रहा हूँ. We are talking about only one dimension. That means motion in a straight line. That straight line could be anything. The straight line could be like this, it could be like this, it could be like this, doesn't matter. But we are sticking to motion in a straight line. In that case, if direction does not change, the distance is equal to displacement. If it changes, obviously distance will be more than displacement. Okay. Utkarsh has said that when direction of velocity remains constant. Okay, it's the same thing. I mean, it's the same thing. So now let's look at velocity and speed. Now, what is the relationship between velocity and speed? What is the relationship between velocity and speed? What is the relationship between velocity and speed? Yes, answers please. Okay, Dhruv has given a certain answer. I'm not reading it out exactly. Okay, now let's talk about two speeds actually and two velocities also. And that is, if you look at instantaneous values, so the magnitude of instantaneous values of the two are equal. Because when we talk about velocity, what do we really say? We measure it with the help of a speedometer. So speedometer actually gives the speed, and once we attach the property of direction to that, right, left, top, down, जो भी define करता हो, it becomes velocity. So instantaneous values are always the same, but yes, average velocity magnitude. So magnitude of velocity average can be less than or equal to, okay, L dot average. Now again, this will also depend on the same thing. अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो दैट केस एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, और अगर डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तो दैट केस एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा. तो सेम रिलेशनशिप एज दिस वन. सो दीस आर एक्चुअली रिलेटेड टू ईच अदर. सेम रिलेशनशिप. ठीक है ना? चलो ठीक है. एक्सेलरेशन. कैन आई से एक्सेलरेशन एज rate of change of speed, or the magnitude of acceleration is rate of change of speed? Can I say, so this is a question, can I say acceleration magnitude is equal to rate of change of speed? Mind you, we are only talking about 1D motion. We are not talking about 2D motion. Okay. In this context, I mean, you know, now the thing is a little split. I mean, most of them are saying yes. Most of them are saying yes, but there's a no also by Aryan. बाकी तो mostly yes ही बोल रहे हैं. Aryan. Okay, Aviral says velocity due to direction. Yog yes, Lavanya yes, Dhruv yes. Okay, Aadhar says yes. Okay, Aryan is the only one to say no. I mean, तो ये नो वाले का एक्सप्लेनेशन दोगे बेटा आर्यन? ये बाकी तो यस बोल रहे हैं. तो वैसे 1D में भी देख रहे हैं तो स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम जनरली वेलोसिटी को स्केल मान सकते हैं. नहीं, तो मैंने इसलिए मैग्नीट्यूड बोला, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड. एक्सेलरेशन वैसे तो +3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है.
लेकिन अब क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं तो यानी +3 या तो +2, नो माइनस। ओके, एज सच तो यस, एज सच तो यस, बट इसमें थोड़ा सा कैच है। कैच मैं बताता हूँ क्या है। सपोज एक वॉल है, ठीक है ना, एक वॉल है, ओके। इस वॉल पे जाके एक पार्टिकल u स्पीड से गया और u स्पीड से वापस आया, थोड़ा इसको सोचो। और हम लोग ना फिजिक्स में सारे फिनोमेना को इंस्टेंटेनियस मानेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस कोलिजन को देखता हूं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि एक इंस्टेंट पहले वेलोसिटी था +u, एक इंस्टेंट बाद वेलोसिटी है -u, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया -u माइनस +u यानी -2u, और इंटरवल को तो हम 0 मान के चल रहे हैं, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन विल टेंड टू -इंफिनिटी। लेकिन अगर ये फेनोमेना इंस्टेंटेनियस है तो इन दैट केस जो चेंज इन स्पीड तो 0 है, ठीक है ना। तो यानी आंसर क्या होगा? Yes, mostly we can take acceleration as change in rate of change of speed also, or rather acceleration magnitude as change of rate of change of speed also, except for where there are sudden changes of direction, there we cannot, ठीक है। बट हाँ, ये चेंज अगर स्लोली होता है, जैसे मान लो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0, 2, 1, 0, फिर -1, -2, -3, -4, इस तरीके से अगर जा रहा है, तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो सडनली हो रहा है, ऐसे इंस्टेंटेनियस फिनोमेना अगर हो रहा है, इन दैट केस दैट्स एन एक्सेप्शन हमें, अदरवाइज इट विल मोर और लेस होल्ड, एंड दैट इज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बोलने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑब्वियसली 2D में तो अलाउड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2D में तो अगर जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर हम लेते हैं तो इन दैट केस स्पीड तो नहीं बदल रहा है लेट्स से, लेकिन एक्सेलरेशन तो फिर भी होगा बिकॉज ऑफ व्हाट? चेंज इन डायरेक्शन। यानी एक्सेलरेशन के पीछे दो वजह होता है, दो रीजन होता है, एक होता है चेंज इन मैग्नीट्यूड और एक होता है चेंज इन डायरेक्शन। तो अगर कर्व है, in that case change in direction वाला जो acceleration है वो तो हम avoid कर ही नहीं पाएंगे। We are not talking about 2D, we are talking about only 1D. In that the answer is mostly yes, except for very instantaneous phenomena like collisions etc. ठीक है? So that's the background. सर लेकिन dt अगर 10 to 0 करेगा तो dv भी 10 to 0 करेगा, तो फिर नहीं, मैंने क्या बोला? इंस्टेंटेनियस मतलब एक इंस्टेंट पहले +u और एक इंस्टेंट बाद -u, ठीक है ना, ये चीज उस केस की बात कर। सर जैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो dv by dt नहीं है। देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में तो अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो 2D में डिस्कस करेंगे, है ना। अभी तो हम लोग सिर्फ 1D के ही कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। हाँ लेकिन फिर भी मतलब वैसे एक बार कि वो तो बात सही है कि देखो 2D में तो हम कर ही नहीं पाएंगे। 2D में एक्सेलरेशन विल नॉट बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, लेकिन हाँ 1D में चल सकता है, ठीक है ना, मतलब मैग्नीट्यूड चल सकता है, ठीक है। हमें वही पूछना था, लेकिन कि मतलब वैसे इन जनरल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ना रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ही होता है और रेडियल एक्सेलरेशन 1D में होती नहीं है। तो नहीं, रेडियल एक्सेलरेशन तो अलग होता है ना, तो दोनों का वेक्टर सम होगा ना, उसमें भी नहीं कह पाएंगे। मतलब 2D में तो इन एनी केस नहीं कह पाएंगे, 1D में तो मोस्टली कह पाएंगे एक्सेप्ट फॉर इंस्टेंटेनियस फिनोमेना। दैट्स द पॉइंट। यही अगर मान लो एक्सेलरेशन ऐसे होता है, जैसे मान लो इधर जा रहा है मान लो 5 मीटर पर सेकंड, तो 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिर -1, -2, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो चलेगा। ये एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, उसमें कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलो ओके, आर्यन सेज कि मैं भी कुछ ऐसे ही कह रहा था, या मे बी, बट मे बी आई डिडंट रीड योर स्टेटमेंट मे बी, और मे बी इट गॉट स्किप। चलो लेट्स मूव ऑन। नाउ let's discuss this equations. I mean, b is equal to u plus 80, s is equal to ut plus half 80 square, then you have v square is equal to u square plus 2as. ठीक है? Can we use these equations everywhere? No, sir. No. So we can use it only when acceleration is constant, isn't it? चलो ठीक है, एक लास्ट चीज मुझे बता दो, is that velocity average का definition क्या है? So maybe who will take the turn? Yes, Sumant Anand. Sumant, what is meant by velocity average? Okay, Akshat has asked you, what about variable acceleration? I mean, let's not go to that. I mean, variable acceleration to jerk, so that's like getting it too far. Yes, Sumant. Sumant, can I have you on here? Oh,
डाउट ही होगा। Yeah, Navansh, what is average velocity? Yes, sir. Yeah, can you define average velocity? Sir, total displacement traveled upon total time taken. अच्छा एक चीज बताओ, कभी कभी हम लोग देखना, जैसे मान लो अभी मेरे पास मेरा इस बार मान लो नंबर है 80% और अगले बार है मान लो 84%, तो हम क्या करते हैं 80% प्लस 84% बाई 2 करके एवरेज परसेंटेज मार्क्स निकालते हैं। तो क्या ये एवरेज वेलोसिटी में अलाउड है? No, sir. ओके, तो क्यों नहीं अलाउड है या कभी अलाउड नहीं? नहीं सर, एक केस में है सर। हाँ, कौन सा केस में? सर अगर दोनों टाइम में सर डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सर। नहीं, डिस्प्लेसमेंट मैं तो इंटरवल की बात करूं, दो डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं कि इक्वेट करोगे। सेम टाइम इंटरवल के लिए सर। सर दोनों टाइम इंटरवल सर इक्वल हो तो टाइम इंटरवल एक ही है। मैं कह रहा हूं यहाँ पे कुछ वेलोसिटी स्टार्टिंग में और एंड में कुछ वेलोसिटी, तो मैं एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 करना चाहता हूं, क्या दिक्कत? अलाउड है सुमन? ओके, ध्रुव सेज कि नहीं, ये तो सिर्फ हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में यूज कर सकते हैं। नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं बेटे। देखो एवरेज वेलोसिटी तो बिल्कुल सही बात है, इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, दैट्स व्हाट द डेफिनेशन इज, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इट इज जस्ट दैट इट इज आल्सो इक्वल टू v नॉट और अदर v इनिशियल प्लस v फाइनल बाय 2, और उसमें कंडीशन अटैच्ड है, इफ एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इन दैट केस ये वाला डेफिनेशन भी चलेगा, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है, ये एक स्पेशल केस है जिसमें ये चलेगा कब ना एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो या ना हो, डेफिनेशन इज दिस, ये कभी तोड़, इसका कोई तोड़ नहीं, लेकिन ये कभी कभी चलेगा। कब चलेगा वो मैं लिख दिया, एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो ये वाला भी चलेगा, ठीक है ना। दैट्स ऑल। So these were some of the nuances. I mean, it's now. सर तो डेफिनेशन यही लिखे ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन Definition तो वही टोटल है। टाइम। हाँ, डेफिनेशन तो वही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, लेकिन ये वाला भी चल जाता है, तो मैंने ऑल्सो लिख, ये कब, इफ ए इज यूनिफॉर्म, यानी ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे ही चलेगा, और वो तो हमेशा ही चलेगा, उसका तो कोई वो नहीं, एक्सेप्शन नहीं, ये वाला सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे ही चलेगा। चलो ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन में कोई बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें नहीं है। What we will now do is that we will move on to some simple situations and questions and try to handle them. जैसे पहला क्वेश्चन है कि सपोज मैं घर से कॉलेज जा रहा हूँ, लॉकडाउन सब खत्म हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, so I'm going to college for the first time. तो लेट्स से कॉलेज जो है ना, मान लो 40 किलोमीटर दूर, ठीक है, कॉलेज 40 किलोमीटर दूर है। ध्रुव हैज आस्क्ड कि रिशफलिंग टेस्ट भी होता है क्या कोई? ऐसा तो रिशफलिंग टेस्ट अभी कुछ नहीं है, अभी तो नॉर्मली चलेगा, बट आई थिंक शायद समर हॉलीडेज के बाद यू नो टेस्ट होते हैं और उसमें कुछ ऑप्शन दिया जाता है, बट देन आई डोंट थिंक इस साल वो भी हो, जैसे पिछले साल भी नहीं होता ये सब। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में क्या सैंक्टिटी होता है टेस्ट का, यू नो वेरी वेल, तो देयरफॉर इन टेस्ट के बेसिस पे तो कुछ करना मुश्किल, तो अनलेस कि वो खुल जाए एंड ऑल दोस थिंग्स, ऑफलाइन में टेस्ट होता है, स्कूल में होता है, सैंक्टिटी होता है, तब तक कुछ नहीं होगा, जो चल रहा है वही चले। चल एनीवे, सपोज दिस इज अ 40 किलोमीटर जर्नी and I'm going by train, और ट्रेन का दिया हुआ है the maximum change in speed, है ना, per second is given and that is equal to 1 meter per second। यानी देखो ट्रेन बहुत ज्यादा सुपर फास्ट तरीके से एक्सेलरेट या रिटार्ड नहीं कर सकती, तो ट्रेन के साथ क्या होता है कि मैक्सिमम जो चेंज इन स्पीड दिया हुआ है वो है 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अगर एक्सेलेरेटर दबाते हो तो देखो स्कूटर वूटर में बहुत जल्दी स्पीड बढ़ जाता है, कार में बहुत जल्दी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन ट्रेन में नहीं होता, ट्रेन में आराम से बढ़ता, तो वो वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड। घर से कॉलेज जाना है ना, घर कॉलेज, तो क्वेश्चन इज फाइंड मिनिमम find the minimum time required. Dhruv has asked one more question, that is when are the CPT is going to start? CPT I think next week में तो मुझे लग नहीं रहा है, but उसके next week से I think CPT start हो जाए, ठीक है ना। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे थे? सर ये क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। क्वेश्चन है कि घर से कॉलेज जाना है, घर कॉलेज 40 किलोमीटर दूर, ट्रेन से जा रहा हूँ,
ट्रेन का जो मैक्सिमम चेंज इन स्पीड पर सेकंड, यानी एवरी सेकंड उसका है ना स्पीड का चेंज दिया हुआ, वो दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड। तुमको बताना है मिनिमम टाइम क्या लगेगा, दैट्स द क्वेश्चन। So Dhruv, CPTs will not probably start next week, but then what I see is that it will possibly start subsequent week. This is what I see. I don't know. Yeah, answer please quickly. ठीक है ना, सबका आंसर सेम आ गया 200 रूट टू। विश्वास कई लोगों ने 200 रूट टू को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके 280 बोल रहे हैं एंड सो ऑन। इज द सेम थिंग। अविरल, भूमिका, विश्वास, एवरीबॉडी इज गिविंग द सेम आंसर, दैट इज 200। ओके, चलो मैं भी इसको सॉल्व करता हूं, जरा ध्यान से देखो। 40 किलोमीटर्स, सो दैट्स लाइक 40,000 meters is equal to, क्योंकि u तो 0 होगा, तो probably you are doing like this, half into a into t square. So t square is equal to 8 into 10 to the power 4, है ना? Then 2 root 2 into 10 to the power 2. That's equal to 200 root 2. Okay, now look at the answer will not be 200 root 2, and let's understand why not. मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था घर से मुझे कॉलेज जाना है। अब एक चीज बताओ, तुमने तो ट्रेन तो दौड़ा दिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, ट्रेन तो दौड़ाओगे ऑब्वियसली। ट्रेन को जल्दी से दौड़ाया, क्यों जल्दी से दौड़ाया? क्योंकि मुझे जल्दी टाइम पहुंचना है, मिनिमम टाइम पे पहुंचना है। पर तुमने पहुंचने का प्रोविजन तो रखा ही नहीं, यानी उस समय तो ट्रेन फुल स्पीड से चल रहा है, कूद जाओगे? पहली बार कॉलेज, ट्रेन चल रहे तो फुल स्पीड पे, हम तो कूद जाएंगे। कैन नॉट बी द स्पिरिट, ठीक है ना? ओके, आधार हैज नाउ स्टार्टेड थिंकिंग दैट, विश्वास हैज नाउ स्टार्टेड थिंकिंग, अरे नहीं रुकना भी तो है। आधार हैज आल्सो सेड कि ये डीएक्सेलेरेशन का टाइम भी तो इंक्लूड होगा। बिल्कुल बात सही है, तो यानी ये मिनिमम टाइम तो नहीं हुआ फिर, क्योंकि यहाँ तो ऐसे कर दिया कि तुमने पूरा एक्सीलरेट करा दिया, पूरे 40 किलोमीटर, तब जाके आंसर आ रहा है। ये नहीं होगा। क्या आंसर होगा ना इस बार? क्योंकि चेंज इन स्पीड मैक्सिमम दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड, और तो कोई डेटा है नहीं, तो हम यही मान के चलेंगे कि जब बढ़ता है वो भी मैक्सिमम 1 मीटर पर सेकेंड, और जब घटेगा वो भी 1 मीटर पर सेकेंड, और ये सिमेट्रिकल हो गया। और जरा सोचो, अगर मान लो 10 सेकंड स्पीड बढ़ता है तो यानी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो उसको घटाने के लिए भी तो 10 ही सेकंड चाहिए। यानी अगर तुम मिनिमम टाइम में पहुंचना चाहते हो, मिनिमम टाइम में पहुंचना चाहते हो, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम ब्रेक, दैट्स व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू। ठीक है, तो अगर मान लो यहां तक का टाइम टी होता है, तो इसके आधे का टाइम हो जाएगा t/2, यानी डिस्टेंस भी आधा ले लो, टाइम भी आधा ले लो, यू विल गेट इट लाइक 20 किलोमीटर, यानी 20,000 will be half a into t/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो therefore t आ जाएगा अब 16 into 10 to the power 4 का अंडर रूट, यानी 400 सेकेंड्स, यानी इसका करेक्ट आंसर अब आ जाएगा 400 सेकेंड्स। Harsh has given the first correct answer, but I'm sure others also must have already started doing it and must have got the same answer. However, you might protest कि आपने तो पूरा जर्नी लिया ही नहीं है। एक्चुअली मैंने पूरा जर्नी का कैलकुलेशन इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि आधे में एक्सेलरेशन, आधे में ब्रेक, तो पूरे जर्नी का कोई कॉमन इक्वेशन लिख भी नहीं पाई, क्योंकि इक्वेशन जितने भी वैलिड थे वो कब है? एक्सेलरेशन सेम होने पे। तो ब्रेक सॉरी एक्सेलरेटर ब्रेक दोनों का इकट्ठे इक्वेशन हो भी नहीं सकता। या तो एक काम करो, आधा एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखो और फिर आधा ब्रेक का इक्वेशन लिखो और फिर सॉल्व करो। बट इस केस में सिमेट्री के कारण उसका भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आधा डिस्टेंस और आधा टाइम, तो फिर तो मामला उसी से सॉल्व हो गया। हाँ, अगर एक्सेलरेशन और ब्रेक अलग है, देन ऑफ कोर्स वी विल हैव टू स्ट्राइव अ बिट मोर, तब हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उसमें क्या किया जाए। जैसे सपोज अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। सपोज आई से दैट now the same question, so let's stick to the same question, 40 kilometer, no, suppose I say that maximum acceleration is equal to 3 meter or let's say 4 meter per second square, even 3 meters भी चलेगा, 3 meter per second square, और मैक्सिमम ब्रेक है सपोज 2 मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ। ठीक है, अगेन द क्वेश्चन इज द सेम, फाइंड द मिनिमम टाइम। अब मिनिमम टाइम निकालो। गुड, 400 seconds, so the first answer. Okay,
That's the only answer in fact अभी तक. What about others? ओके, इस बार ना मैं एक चीज थोड़ा समझना चाहता हूँ या समझाना भी चाहता हूँ. दैट इज, देखो सपोज एक्सेलरेशन 3 है और मान लो 10 सेकंड एक्सेलरेट कर. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सो दैट यू कैन गेट ए क्लू आउट ऑफ दैट. तो 10 सेकंड एक्सेलरेशन किया तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 30 मीटर पर सेकंड हो जाएंगे उसका वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड्स. अब रिटार्डेशन तो 2 है, यानी उसको ड्रॉप होने में कितना टाइम लगेगा? 30 मीटर पर सेकंड को, और 2 करके रिडक्शन हो रहा है, यानी 15 सेकंड. तो जरा ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन 3 है, मान लो 10 सेकंड है, तो फाइनल वेलोसिटी आ गया 30 मीटर पर सेकंड. रिटार्डेशन है ना इज इक्वल टू -2, इसमें 15 सेकंड लगेगा तब जाके फाइनल 0 सेकंड. यानी जरा समझो, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड का रेशियो अगर 3:2 है तो टाइम का रेशियो देखो ना ध्यान से, 2:3 है. यानी टाइम का रेशियो एक्सेलरेशन के रेशियो के उल्टा हो जाएगा, या कह सकते हो मैग्नीट्यूड के रेशियो के उल्टा हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? तो देयरफॉर जरा सोचो, अगर टाइम देखते हो तो यार है 2:3. एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग का जो मैग्नीट्यूड का रेशियो है वो है 3:2. मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं. तो टाइम का रेशियो 2:3. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल टाइम t होता है तो उसको मुझे 2:3 में डिवाइड करना, यानी ये हो जाएगा 2t/5 और ये हो जाएगा 3t/5. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन कंक्लूड. दूसरा, अगर मान लो ये t है, मतलब ये टोटल टाइम है फॉर एक्सेलरेशन तो 3 है, यानी वेलोसिटी कितना होगा? अगर मैं vt ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा 2t/5 into 3. दैट मींस ये वेलोसिटी हो जाएगा 6t/5 और फिर ये घटेगा ऐसे. देखो जरा वेलोसिटी जो आ रहा है 6t/5, यानी टोटल टाइम तो t है और हमें पता है कि vt ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट. तो इस केस में vt ग्राफ का एरिया कितना होगा? t और 6t/5 यानी हाफ into t into 6t/5. That should be equal to the total distance, and that is 40,000 meters. Okay, Vishwas has given one answer, and that is 80√5/√3. देखता हूं तो है ना, तो यानी ये हो गया 2 से 3, ये 5 से हो जाएगा, that we can do. So 5 goes at 20/3, so t square is equal to 20/3. या 20/3 भी क्यों लिखा है? 2/3. 2/3 into 10 to the power 5 is such a 20/3 into 10 to the power 4 और इसका अंडर. ठीक है, तो t आ गया, I think let's write it as 20/3 only into that's the answer. Okay, Lavanya Jain has given different answer, and that is 18/√5 plus √15/3. Okay. Actually, I have done it now, so like you can check the answer. ठीक है, तो मैंने क्या किया, टोटल टाइम अगर t है तो मैं देख रहा हूँ कि एक्सेलरेशन का रेशियो 3:2 है, मतलब मैग्नीट्यूड, यानी टाइम का रेशियो 2:3 है ना. तो इसलिए ये हो जाएगा 2t/5 और ये 3t/5. तो यानी ये हो गया एक्सेलरेशन का पीरियड. तो v इज u plus at, तो u तो 0 है, a 3 है और t हो गया 2t/5. तो इससे इसका मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया 6t/5. so this is the maximum velocity 6 into t/5. अब इसका एरिया निकालना है तो क्या, हाफ into t, that is the base, into altitude 6t/5, and that should be equal to what? The distance to which is 40,000. तो उससे t आ गया √20/3. Okay, Dhruv has now given 1000 upon √13. ना, ये तो नहीं आ रहा, एक बार मेरा कैलकुलेशन भी चेक कर लो, otherwise the answer is 120/3 into 10 to the power 2 seconds. चेक करो. अभी मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल सकता हूँ, जैसे 4 into 5 करके 2 और वो सब. I think इतना जरूरत नहीं. I think 20/3. That's the way. सर दोनों के दोनों अप्रॉक्स उतने ही आएंगे. नहीं, ये एग्जैक्ट वैल्यू है.
सर मैंने दूसरा मेथड किया है। अच्छा, हाँ एक बार बताओ जरा। सर मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सेलरेशन का टाइम मतलब हाफ ए टी कर दिया और दूसरे में ऐड करके दोनों को डिस्प्लेसमेंट के इक्वल वो इक्वेट तो कर ठीक दिया। है, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा आंसर आ रहा है लेकिन 1000/√13, यस सर। तो वो तो इसके साथ रिकंसाइल नहीं हो पा रहा है ना, मैं चेक करता हूँ। है ना। √13 जो फैक्टर आ रहा है, that cannot reconcile with √3. So somewhere there must be some dichotomy. वो चेक कर लो। लावण्य सेट के आंसर तो 192.72। एक्चुअली लावण्य, योर फॉर्मेट ऑफ द आंसर इज नॉट द सेम, दैट्स द प्रॉब्लम। और इसमें फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। योर फॉर्मेट इज समथिंग लाइक √5 + √15, तो वो फॉर्मेट इसके साथ मैच नहीं करेगी, ये तो सिंगल रूट के अंदर है ना, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। ओके, चलो लेट मी एक्चुअली जनरलाइज दिस सिचुएशन। सपोज मैं कहता हूं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन है अल्फा और मैक्सिमम ब्रेक है बीटा, और एस का डिस्प्लेसमेंट हमें करना, so the total distance is suppose s, ये given। the question is the same, find out minimum time। तो मिनिमम टाइम कब होगा? जब तुम फुल एक्सीलरेटर दबा दोगे और फिर फुल ब्रेक दबा दोगे, so that's what is going to happen। now go ahead, सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। देखो क्वेश्चन एक्चुअली सेम है, बस ये कि न्यूमेरिकल सब में इसको जनरलाइज कर। सपोज ट्रेन का जो ऑप्शन दिया गया है उसमें मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन होता है वो अल्फा है, पूरा तो क्वेश्चन जब ब्रेक लगाता है तो मैक्सिमम ब्रेकिंग दे रखा है बीटा, यानी ऑब्वियसली जब तुम इक्वेशन में पुट करोगे तो ऑब्वियसली वहां पे माइनस बीटा पुट करोगे, एक्सेलरेशन इज माइनस बीटा, ब्रेकिंग बीटा, तो यानी एक्सेलरेशन माइनस बीटा होगा। तो लाइक दोस थिंग्स यू कैन एडजस्ट योरसेल्फ। मिनिमम टाइम टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ s, गो अहेड। पुराना क्वेश्चन भी रिपीट, मतलब ये क्वेश्चन एक बार पूरा बता दो, पुराना क्वेश्चन पता नहीं क्या था। Aryan has asked कि can't we use the second equation and then apply minima to find time? No बेटे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम चेंज हो रहा है, बीच में एक्सेलरेशन फिर रिटार्डेशन, तो बीच में सिस्टम चेंज हो गया ना, दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए सर ये सेम उसमें करो। व्हाट यू कैन पॉसिबली डू इज दैट यू कैन जस्ट प्लेनली यूज द ग्राफ जो मैंने बताया, ठीक है ना। सर ये क्वेश्चन रिपीट कर दो। एक्चुअली देखो क्वेश्चन में मैंने बोला था कि मैंने एक्सेलरेशन दिया था शायद 3 और ब्रेकिंग दिया था 2 का, मतलब एक्सेलरेशन -2 हो गया। तो ऐसे में मिनिमम टाइम टू फाइंड आउट फॉर 40,000 मीटर्स, तो मैंने बोला था कि एक्सेलरेशन अगर 3 होता है तो वो कम ड्यूरेशन के लिए होगा, और ब्रेकिंग 2 यानी स्लो होता है, यानी ज्यादा ड्यूरेशन होगा। वो जो टाइम है ना वो इनके ऑपोजिट रेशियो में डिवाइड होता है। तो अगर एक्सेलरेशन 3 है, ब्रेक 2 है, तो एक्सेलरेशन का ड्यूरेशन ओवरऑल टाइम को 3 + 2 5 मिनट्स में डिवाइड कर देता हूं, तो 2t/5 विल बी फॉर एक्सेलरेशन एंड 3t/5 विल बी फॉर ब्रेक, दैट्स द पॉइंट, ठीक है ना। बस तो ये 2t/5 और एक्सेलरेशन 3 है, तो v is equal to u + at, u तो 0 है। अरे ये सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा सर, क्वेश्चन पूछ रहा था। ये क्वेश्चन तो यही था कि 40,000 मीटर कवर करना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3 है, मैक्सिमम ब्रेक 2 है, तो मिनिमम टाइम क्या लगेगा, उसके लिए हमने कैलकुलेशन किया, ठीक है ना। देख लो चलो अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं। सपोज मैं कहता हूं मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा है, maximum break beta है, find out the minimum time, and the distance that I have to cover is suppose s, find out the minimum time। s into alpha plus beta upon alpha beta। चलो seems to be on right lines। अभी लगता है शायद थिंकिंग एकदम बिल्कुल करेक्ट लाइंस पे है। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। Dhruv has also given √2 into s into alpha plus beta by alpha beta, ठीक है ना।
आर्यन सेट की मैंने मिनिमा लगा के भी आंसर निकाला है. See, what you have to do is that you have to now find out an expression for let's say time t1 or total time t minus t1 and then differentiate with respect to time. Okay, Shashwat says कि root under alpha plus beta by alpha beta ठीक है. एक 2 शायद मिसिंग है मुझे लग रहा है. ठीक है. देखो मैं इसको इस बार इस तरह से करना चाहूंगा इस दैट as I was saying कि एक्सेलेरेशन अल्फा है और ब्रेक हो गया बीटा, तो यानी टाइम उल्टा रेशियो में हो, है ना. यानी अगर टोटल टाइम टी होता है, लेट्स से टोटल टाइम अगर टी होता है उसको डिवाइड करेंगे इंक्रीजिंग वेलोसिटी डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन द ऑपोजिट रेशियो. यानी ये हो जाएगा, ये वाला जो टाइम होगा ये हो गया बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इनटू टी, और ये वाला टाइम हो जाएगा अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा इनटू टी. ठीक है ना. ये देखो फाइन, बस दैट्स इट. तो ये v आ गया, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो जाएगा फिर ना. एक्सेलरेशन तो अल्फा है तो u प्लस ए टी, तो a तो अल्फा और t ये आ गया, तो यानी ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वो होगा अल्फा बीटा, है ना. बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इनटू टी. ये हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी. बस अब तो एरिया से कर लो. एरिया से क्या होगा हाफ, है ना. एरिया से होगा हाफ और यू नो बेस यानी टी, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हाफ इंटू टी इंटू अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी इज इक्वल टू एस. तो टी इज इक्वल टू 2s इंटू अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा का अंडर. ठीक है, दैट्स राइट. ओके, अच्छा इसमें कई बार ना, सर इसको डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं. हाँ, तो अगर मान लो तुम डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो दैट इज डिवाइड द थिंग इनटू 2 पार्ट्स. फिर एक्सप्रेशन लिखो डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टी, फिर डिफरेंशिएशन. सो लाइक दैट इज गोइंग टू लिटिल लॉन्गर टेरिटरी. उससे तो कर ही सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि जहां पे मिनिमम है तो यू नो डिफरेंशिएशन तो चल ही सकता है ना. सर Okay. मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट को टाइम का फंक्शन लिखना है फिर कर देना है. हाँ differentiate. बिल्कुल, ठीक है ना. ओके, कई बार इसमें ना स्पीड कैपिंग भी रहता है. जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. सपोज मुझे 10 किलोमीटर का जर्नी कवर करना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे रखा है सपोज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैक्सिमम ब्रेक दे रखा है सपोज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मैक्सिमम स्पीड भी दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड. तो क्वेश्चन इज द सेम, मिनिमम टाइम. यानी क्या, अब स्पीड कैपिंग भी है तो क्या करो. So now let's see if there is a speed capping, what to do. Find out the minimum time. Go ahead. Okay, Yash has given almost a quick answer, I mean, and that is 15 seconds. That's a quick answer. Okay, अब तो कई सारे 15 आंसर्स आ रहे हैं. ठीक है. So therefore this time if you look at the graph will be like this, है ना. इस बार
बाद में ज्यादा स्टीप होगा, तो लाइक इनिशियली लाइक दिस एंड लाइक दिस. ओके, तो इस बार क्या ना कि मैक्सिमम स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन दे रखा है 4, तो यानी कि 10 सेकेंड्स का होगा. ये हो गया 40, ये हो गया 10 सेकेंड्स, और ये वाला हो जाएगा 5 सेकेंड्स. तो ये हो गया 10 सेकेंड्स, ये हो गया 5 सेकेंड. बट आंसर 15 सेकेंड बहुत लोगों ने दे दिया फटाफट, बट 15 सेकेंड्स क्यों दे रहे हो बेटे? 15 तो यही दोनों हो गया ना, हमें तो टोटल 10 किलोमीटर भी तो कवर करना है. वो जो यूनिफॉर्म स्पीड है 40, इस पे भी तो कवर करना है ना. तो पहले एक काम करते हैं, ये वाला कवर कर लेते हैं. कितना? हाफ 10 into 40, that's equal to 200 meters, है ना. और ये हो गया हाफ इंटू 5 into 40, यानी 100 मीटर. तो ये 200 मीटर हो गया, ये 100 मीटर हो गया, तो 200 100 300 मीटर कवर हो गया. अब मुझे 10 किलोमीटर कवर करना है, यानी 9700 मीटर का भी रहता है, तो 9700 मीटर को भी तो कवर करना है. ये तो 200 और 100 मीटर ही कवर हुआ अभी, है ना. मिनिमम टाइम ऑफ द टोटल जर्नी ये भी तो देखना है. तो मैक्सिमम 4 एक्सेलरेशन, तो 4 की वजह से ये आ गया 10 सेकेंड, ये आ गया 5 सेकेंड. तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 200 मीटर और 100 मीटर तो 300 मीटर, है ना. तो 9700 विल बी कवर्ड एट 40, ये वाला. तो ये एक अलग सा टाइम है 970 by 4. 245. हाँ वही जो भी आएगा, ठीक है ना. दैट यू कैन कैलकुलेट. वो तो 225 और 70 by 4 का भी है. 70 by नहीं 485 by 2 जो भी है. Sorry, 242. for 2.5. हाँ जो भी है, whatever that is okay. हमें यानी 15 सेकंड प्लस ये वाला. So like the total time will be equal to 15 plus this. तो अपने आप कैलकुलेट कर लेना. 970 by 4. So that's how the calculation has to be. अब ठीक आंसर आने लगे, and that is 257.5. It seems के आंसर आ रहा है 257.5. चलो ठीक है. Okay, with the same set of equations, we can also calculate what is called as displacement in the nth second. So displacement in the nth second is basically what? Displacement in n seconds minus displacement in n minus 1 seconds, है ना. तो ये तो हो जाएगा ut plus half at square minus ut plus half at square with n minus 1. तो इसको सॉल्व कर लो, है ना. मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, get it yourself later on. और इसका क्या आता है ना, u plus a by 2 into 2n minus 1. So that is your SNA. ठीक है. So there's one more equation, I mean, apart from those three that you already read in class 9. Of course, many of you must have read this one as well. इसमें ऐसे कुछ नया तो नहीं है, but I'm just saying like these are the equations that you're supposed to handle. ठीक है ना. Okay, now let's move on. The first discussion that we're going to do now is on vertical motion. Vertical motion में acceleration due to gravity का रोल आता है, यानी g का रोल आता है ना. So my question here is that g का साइन कैसे डिसाइड हो, है ना. So maybe I will just ask somebody. I mean, Dhruv has asked a question. Is it not wrong to describe the question like this? Equation like this? No, I'm not getting you, Dhruv. Sir, like we have written that u plus a by into 2n minus 1. Sir, but u has a different dimension. Actually, see, it's not like that. I will tell you where the thing is that it is u in 1 second. So that is u into 1 actually. 1 second Yes. छुपा हुआ. Yes, sir, but sir, लेकिन ऐसे लिखना तो गलत है ना थोड़ा.
देखो मैं बताता हूँ, ये जो होता है ना एस एन एच का मतलब क्या होता है, उस nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, उसके अंदर एक्चुअली u इंटू 1 छुपा हुआ, वो दिख नहीं रहा। वो ऐसे तो यहाँ पे भी देखोगे तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और n अगर सेकंड किलो तो फिर तो मीटर पर सेकंड आ रहा है। एक्चुअली दिस इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड, दैट इज द वे टू इंटरप्रेट इट, ठीक है ना। इसलिए ऐसा कुछ गलत कुछ नहीं है, वो अपरेंटली देख के डायमेंशनली गलत लगता है, बट इसमें कोई गलत नहीं है। दिस इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड, दैट इज द इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। चलो शाश्वत सेठ की मुझे लगता है वो एचसी वर्मा में कुछ ऐसे है, चलो मे बी द इंटरप्रिटेशन हैज टू बी अंडरस्टूड। एनीवे, जो मेरा क्वेश्चन था वो थोड़ा अलग था, एंड दैट इज जी का साइन। कैन वी गो टू लेट्स से राघव ग्रोवर? Raghav, can we have you on air? Can you tell me about how to take the sign of G as such? Nothing very complicated question. It's a simple question. Raghav Grover, can we have you on air? Yeah. Yes, Raghav. Yes, Raghav. You were switching on the microphone, but I don't know what happened. Okay, let's not waste time this way then. No, beta, you are not audible actually. I'm getting your messages, but not the audio. Chalo, maybe in that case, message se hi bata do fir. है ना? You can just say to the message itself. Okay. Chalo. In the meanwhile, let's go to somebody else. Let's go to Lakshay Gupta. Lakshay Gupta, can you tell me about the sign of G? Now there are also some opinions coming up by messages. I will read them later on. Lakshay, can we have you on air? Okay. Now there are some members who are silent, inactive sometimes. I think I need to catch them up a little bit. But anyway, today I will not waste time. Harsh, can we have you on air then? Harsh, sign of G. Go ahead. Yes, sir. Yeah, go ahead. So it depends. It also depends on the velocity or the direction of motion. Like if we project if any object is projected upwards and we take the velocity of object as positive, then the sign of G would be negative. And if we throw downwards? And if we throw downward, then it would we would consider it positive, the sign of G. Chalo, theek hai. There are some more answers. Let me take that up quickly. Aadhar has said ki while going upwards, we take G negative, and while going downwards, G is positive. Utkarsh की साइड G मैग्नीट्यूड होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और साइन हम खुद पुट करेंगे. Dhruv says negative downwards. Vishwas says G is always negative. Okay, because we are a little running out of time. Vishwas, can you catch you there? Can you just tell me what exactly you meant by G is always negative? Because that's the most authentic concept till now. Yeah, go ahead. Sir, if we consider ground as the origin, so sir, whether we throw the body upward or downward, the G always acts downward. So is it necessary to take the ground as the origin? No, sir. It's not necessary. It depends upon the motion also. So therefore, ground is not really important. So like that part we can probably put aside, isn't it? Yes, sir. Okay, sir, we can just consider that because G is always acting downwards. So no matter from where we throw the body, the G will always be negative. Okay. So I think it is always positive. Like in most of the places I have seen, like where it is negative, we ourselves put the sign, and in everywhere I have seen they have taken G as positive only. So when we are saying it's G, just a convention. okay, from yeah, G magnitude. Sir, actually we can decide any direction as the positive and the other negative. Yes, sir. Sir, it depends on our choice of coordinate system. choice of coordinate system. Fine. I think now we are pinning down to the actual thing. The thing is that we have chosen acceleration due to gravity. So therefore, acceleration must have a sign, plus or minus.
Yes, it is true. Last two answers that was true is that कि वो sign हम decide कर सकते. See, something like this. If a person is going ahead, let's say 10 meters like this, and if I'm like moving, if I'm looking at him, so I will say plus 10. But let's say I'm looking at this direction and the person is going there, so the same person will now become minus 10. So the person did not change. The observer changed. So here also the same thing. Acceleration due to gravity has only one direction, and that is downwards. So acceleration due to gravity has only one direction, and that is downwards, because it is because of the pull of the earth, and that is always down. However, if I am looking up, so whether the body is going up or down is immaterial, because body going up or down is actually velocity. Let's not look velocity and decide the sign of g. G is always downwards. Plus minus, we are supposed to decide. Mostly, we take this as the positive direction. This is what is mostly done. And therefore, g will become negative. It just simply does not matter whether the body is moving up or down, or even at an incline, or moving in a curve or straight line or whatever. Doesn't matter. G will be negative. If I take this as the positive direction, and if I swap the positive direction, then G will be always positive. So that's how it is decided. Therefore, G does not have a sign by itself. It will depend. It will be decided by the observer. Okay, and that's what the thing is. Anyway, we are in the middle of the discussion, or the heat of the discussion. I mean, we will carry on with the discussion tomorrow. Time is just up. I mean, ये वाला discussion जो है ना regarding sign of G and all. इसको थोड़ा सा और करके then we will move into questions where we will solve and get answers based on the sign of G as well. Because if we cannot put a wrong sign of G in the equation, so that does have a bearing. Because we put two different signs in the same equation, I mean two different people putting different signs, one of them will get it wrong. So that therefore we cannot just put it arbitrarily. The convention is this only. How to use? Let's postpone for tomorrow. So tomorrow we're going to continue with motion in vertical motion, and then we will move on to handling 1D motion using graphs. Fine. चलो आज के लिए इतना ही. We'll carry on tomorrow. Have a good day. सर हाँ जी बेटा. वो फॉर्मूले मैंने बुक्स में देखा था, फॉर्मूले में जैसे जी लिखा हुआ होता है किसी चीज का फॉर्मूले में, वहां पे हम जैसे एक्चुअली हम जी को डील ही नहीं कर रहे, हम एक्चुअली ए को डील कर रहे. वो ए का वैल्यू 9.8 है. अब पॉइंट इज दैट वो ए का जब वैल्यू 9.8 पुट करूंगा तो वो ए में साइन पुट करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट है. ये चीज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इक्वेशन में साइन तो जरूरत है. तो मैं उस साइन की बात कर रहा हूं. मैं जी की वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं. जी का वैल्यू तो 9.8 है, चलो ठीक है. उसी जी में कभी 9.8 प्लस पुट किया जाता है और उसी जी में कभी माइनस. So we are not talking about g per se as the value. We are talking about acceleration as a quantity which somehow has a value of g. अब उसपे क्या साइन पुट करेंगे उसका डिस्कशन चल. इसका मतलब साइन तो वैल्यू है, बट उसमें साइन पुट करोगे ना इक्वेशन में. That's what we are discussing. तो जो इक्वेशन होती है उसके अंदर जी के साइन का कोई मतलब वैल्यू नहीं होती ना. वैल्यू तो वेलोसिटी की उसके रिस्पेक्ट में होती है. नहीं जी का भी इन द सेंस कि एक्सेलरेशन का तो साइन होता है ना. जी को अगर तुम एक क्वांटिटी मानते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तब तो चलो उसमें कुछ नहीं हो, तो बस एक वैल्यू है. लेकिन जब तुम इक्वेशन में पुट करोगे तो वैल्यू के साथ साइन लगा के पुट करना. You cannot treat it anymore as just some kind of value, passive value. अगर हम जी को पॉजिटिव ले लेंगे और उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी सही ले लेंगे, वेलोसिटी देखो ना ये हमारे हाथ में नहीं होता है. ये कैसे होता है कि तुम एक्सिस पहले चूज करोगे, ये सब तो बाद में आएगा. एक्सिस पहले चूज कर लो. एक्सिस क्या चूज कर रहे हो? लेटर से ऐसे एक्सिस चूज किया. इन दैट केस जी नेगेटिव ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास. जहां तक वेलोसिटी की बात है, वेलोसिटी को भी फिर हम इसी एक्सिस के साथ मिलाएंगे. इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, उस हिसाब से फिर उस वेलोसिटी में भी साइन पुट करेंगे बेस्ड ऑन दिस एक्सिस. हाँ, एक्सिस चॉइस तुम्हारे हाथ में. तुम कल को ऐसे भी एक्सिस ले सकते. अगर ऐसे एक्सिस लोगे तो इन दैट केस उसी इक्वेशन में जी के जगह हम सिर्फ प्लस ही पुट करेंगे 9.8 या मे बी प्लस 10 डिपेंडिंग ऑन एक्यूरेट चाहिए अप्रॉक्सीमेट चाहिए. फिर वेलोसिटी जो इनिशियल फाइनल जो भी दिया हुआ है उसको भी फिर इस एक्सिस के साथ टैली कराएंगे और फिर उस पे भी साइन पुट करेंगे. सो इट्स नॉट वही कह रहा था मैं. यूनिलैटरल. ठीक है ना. हाँ, the first step is invariably choosing the direction that you are taking as positive. और जो कि मोस्टली ऐसे लिया जाता है, क्योंकि देखो बार-बार डायरेक्शन चेंज करने का भी कोई इतना खास जरूरत नहीं है. तो मोस्टली वी टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, दैट इज अपवर्ड. उस हिसाब से अगर देखोगे तो जी का जब वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन में तो हम हमेशा माइनस ही पुट करेंगे. ओके. वेलोसिटी अलग चीज होती है. वेलोसिटी इज अ डिफरेंट क्वांटिटी. वी आर नॉट
थैंक तो यू कभी सर। किसी बुक में माइनस जी कभी नहीं देखा, मतलब जी की वैल्यू -9.8 हमेशा प्लस ही देखा हुआ है, समझे नहीं? मतलब जी तो एक वैल्यू हो गया, लेकिन जी को जब हम हाँ इक्वेशन में पुट करेंगे तब के साइन की बात कर रहा हूँ मैं, तो जी के साइन की तो बात हाँ ठीक है, वो ए का साइन होगा एक्सप्लेनेशन फिर, क्वांटिटी, वो वो तो उसके ए साइन का की साइन। बात कर रहा हूँ हर बार, मैं वही कर रहा हूँ बार। और ध्रुव has asked कि सर स्कॉलरशिप हमेशा रहेगी या छीन सकती है? देखो मैंने जो देखा इज दैट पूरे बैच में स्कॉलरशिप एक दो जने का इधर उधर हो जाता है इफ देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज ऑफ परफॉर्मेंस, जो मैंने अभी तक 7-8 साल में देखा नहीं। बट दैट बी लिटिल कॉन्फिडेंट है क्योंकि देखो सब कुछ अगर रिलैक्स कर दो ना तो फिर सब लोग सोचते हैं चलो ठीक है फिर क्या करें, थोड़ा सा प्रेशर भी होना चाहिए, है ना? तो लाइक एज आई सेड, इट्स ओनली इन अ वेरी 1 or 2 टाइप ऑफ केसेस वेयर थिंग्स ड्रास्टिकली चेंज, अदरवाइज इट मोर और लेस रिमेन्स द सेम। ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना, हैव अ गुड डे, लेट्स Excuse एंड me, हियर। sir. ओके, थैंक यू सर। बाय बाय। Excuse me, sir. कुछ पूछ रहे हो बेटा हर्ष? सर मैं पूछ रहा था अपना फर्स्ट लेक्चर कौन सी डेट को था? एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।